इस इंडस्ट्री में ऐसा अगर आप 10 दिन का भी गैप ले लो ना तो रूमर्स आर स्टार्ट कमिंग इन. As an actor, you have to be working. That's what they think. An actor can't be only working. कोई ऐसा हसलर सा बच्चा है आपकी तरह, व्हाट एडवाइस यू विल गिव? If you don't stand out, you might not get a chance also. And you have to be very hardworking. Any advice you have heard on? About what I learned from Hansal sir is like, struggle नहीं करोगे तुम्हारा failure नहीं होगा life में. How will you enjoy the highs of life? कोई भी अचीवमेंट जिसके लिए आप इतनी दौड़ कर रहे हो, वो अचीवमेंट बड़ा छोटा लग जाता है कि यार ये तो सब ठीक है, बट ब्लिंक ऑफ एन आई जिंदगी एकदम खत्म होने वाली है. When you have that achievement, you should know the power of gratitude also. मेरा जाने का समय आएगा, मुझे जाना अकेले है ये सब कुछ छोड़ के. तो आप इतना लगाव मत रखो इस सब चीजों से. And that's about it. Move on in life. So emotional people are usually doubt their capability sometimes. All these doubts, you have to just put it aside and you have to just live for yourself. Have media been any time unfair with the artist also? Trollers have been very unfair to the female actors. We age, so you should leave the industry. पर जब main age करता है तो oh, how stud, you are aging so gracefully. Initially, I used to get hurt a lot with people's comments. But now I think silence is the loudest answer. Karishma, thank you for being part of Impact Stories. Thank you. And Thank you for having me. And what we cover is that we cover hustler stories. And I met yesterday only somebody was talking highly about you. और वो कह रहे थे कि आपसे बढ़िया हसलर नहीं मिलेगा आपको जब बात करोगे आप. ऐसा है क्या? I mean, because उन लोग ने मेरी स्टोरी देखी, उन लोग ने मेरी जर्नी देखी है, तो yes, and why they call me a hustler is because मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूँ, जो मुझे वो जो रिकग्निशन और वो जो पावर मिलना चाहिए था वो मुझे थोड़ा सा लेट मिला लाइफ में, और वो लोग ने मेरी जर्नी देखी है. That's why they call me a hustler, कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है. You know, that's what I love about myself also. Sometimes I shock myself only that how am I still a hustler? Why am I still hustling? Why am I still behind that passion of mine? Why am I still wanting to prove myself? You know, it's a good thing, you know, because at least I'm alive, I feel. Right. I'm not just married and happy and just... जो लेबल टैग हो जाते हैं. हाँ, मुझे वैसा नहीं. मुझे अपने दम पर सब कुछ करना अच्छा लगता है. I like to make difference. तो हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी अच्छा लगता है. शादी होगी तब भी? हाँ. मतलब लोग सोचते हैं ना शादी होगी तो अब तो बैक सीट पे आ जाओ. वही मैं बोली ना, क्योंकि बचपन से as I've said it in a lot of interviews that my dad was not well to do and I had thought that मैं अपने दम पर कुछ करूँगी and I'll keep my family happy. Having said that was just a motivation. When I became independent, I started liking that independence. You know, that किसी को पूछना नहीं है, life अपने terms पे जीना है. And I realized this is me. I'm enjoying this. This is part of my personality. Then why not? And it's good to be independent. You are your own boss. You know, it's a very good feeling. And having said that, I think everyone, मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं करूँगी कि सिर्फ लड़कों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़कियों को, वो गया ज़माना. आई थिंक सारे इक्वल है अभी एंड लड़कियाँ भी उतनी इंडिपेंडेंट है. सो इट इज़ जस्ट गुड टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज यू आर मोर कॉन्फिडेंट. आपके पास एक ही जिंदगी है जीने के लिए, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट और अच्छा फील क्यों नहीं करोगे? इट्स जस्ट दैट सिंपल. जब हसलर की बात आती है ना, तो सी देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर सेइंग ओके बॉबी देओल इज नॉट कमिंग बैक, राइट? फिर आपने वैसे कम बैक किया, स्कूप देखा मैंने आपका, ब्यूटीफुली डन, है ना? हंसल सर ने भी मुझे, मतलब जो मुझे पता लगा, ऐसे बोला कि यार जब लोग सोच रहे थे कि डाउट कर रहे थे, देन आई वाज द वन, आई वाज श्योर अबाउट इट, दिस इज द वन, शी कैन. ऐसा है? ऐसा तो आप आते हो कम बैक करके बहुत जोरदार तरीके से. हाँ, क्योंकि मुझे कम बैक स्ट्रॉन्गर, एग्जैक्टली मुझे प्रूव करना था अपने आप को. एज हंसल सर सेड दैट यू नो दे ऑल डिडंट थिंक दैट आई विल गिव दैट पावरफुल परफॉर्मेंस और गिव दैट इम्पैक्ट. या दे वर डाउटिंग कि अरे करिश्मा कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि द शो इज ऑन दिस कैरेक्टर, यू नो. एंड सर व्हेन ही सॉ माय ऑडिशन ही जस्ट सेड, ही एंड हिज वाइफ बोथ, कि ये लड़की में कुछ तो है, जो वो हंगर है, जो मुझे प्रूव करना है, वैसा उसके ऑडिशन में भी दिख रहा है, तो वो जस्टिस करेगी. एंड व्हेन आई गॉट टू नो दिस, आई वांटेड टू डू जस्टिस because Hansal sir had that faith in me. So I didn't want to let him down. Second, I got this golden opportunity to work with Hansal sir, Netflix, having a author back role. What else do you want? It's all the boxes tick. तो मैं अपना ये golden chance opportunity waste नहीं करना चाहती थी. I wanted to give my blood, sweat, everything, and I wanted to prove not only the world but myself that I can do it.
So that's why when I got this role, मैंने कुछ नहीं देखा. I was like this. I had to break it through. मतलब कुछ भी कह लो, what I believe I have seen इस इंडस्ट्री में ऐसा, अगर आप 10 दिन का भी गैप ले लो ना तो rumors are start coming in. मैंने तो 2 साल का गैप लिया इसको पे. I know, but you have to come stronger. That I agree. Yeah. ऐसा है ना, rumors बड़ी जल्दी build up होते हैं. नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि हाँ मतलब you know maybe she's laid back or maybe she's not getting work or maybe you know out of mind, out of sight, out of mind, ऐसा हो जाता है. हमारे इंडस्ट्री में ऐसा ही है. But you have to keep hustling. बट ये किसी के मेंटल पीस के लिए तो बड़ा डेंजरस है ना. मतलब आप सोचो ना, आप वो भी तो सुनता है, ऐसा थोड़ी उसे पता नहीं लगता है. लोग कुछ भी बोलते हैं, कहीं नहीं सुनाया था, तो उसके एक तो ऑलरेडी उसकी अपनी जर्नी चल रही होती है. एक तो ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब you meet ना people in social events and all. Now what next? Intentionally they ask. What is the next project? Right. We'll tell you when the next project comes. So relax. Am I to ask? Yeah. A human And cannot. especially when an actor is not working on anything. Right. It और is वो- more annoying. और मुझे लगता है कि इसी जिंदगी में काम आपका एक जॉब की तरह एक छोटा पार्ट है, उसके बाद तो आपकी जिंदगी बचती है. Why don't people care about that part? Exactly. But होता है ना कि now what? As an actor you have to be working. That's what they think. हाँ, कहीं नहीं होता ना. हमको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. मे बी काम स्लो है, मे बी काम नहीं मिल रहा है जैसा चाहिए, मे बी हम रिजेक्ट कर रहे कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. सब कुछ हो सकता है ना. एन एक्टर can't be only working. What is your next project? I don't know. बट मस्ट बी, जब अपने बोला 2 साल का गैप आया, बट आपको क्यों ऐसा गैप लिया आपने इतना लंबा? मेरे को ना बहुत टाइम के बाद मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला. मुझे एक लीड रोल करने का मौका मिला. सो आई एम नाउ वांटिंग. मैंने वेट किया ही इतने साल, तब जाकर मुझे ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है. अब मुझे उसको ना डाइल्यूट नहीं करना है. मुझे वैसा ही कुछ अच्छा शो. आई एम नॉट सेइंग ओनली लीड रोल्स आई वांट टू डू. आई एम ओके टू डू ensemble, बट आई वांट टू डू मीनिंगफुल रोल्स नाउ व्हिच मेक्स अ डिफरेंस. इट हैज़ टू बी चैलेंजिंग. अगर मैं आ रही हूँ स्क्रीन पर तो कुछ चैलेंजिंग मुझे करना है, ताकि इट मेक्स अ डिफरेंस इन एवरीबडीज लाइफ. इट्स जस्ट दैट. आई एम नॉट चूजी. आई एम नॉट picky. I love acting. I love to hold the script in my hand. I love to be around set like Dada and directors and all these people. I would love to be. But it's just that कि वो जो let's do it वैसा वाला मुझे अभी तक स्क्रिप्ट आया नहीं है. I'm waiting after school. बट यू लुक लाइक वेरी इमोशनल पर्सन, ऐसा है? I am very तो बड़ा ऐसे ब्रेकडाउन होता है जब कभी कभार? मुझे ना बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे sometimes that why am I so sensitive? Why am I so emotional? I can cry like this. मुझे मतलब किसी के साथ गलत भी होता है, मुझे रोना आ जाएगा. मैं कोई इमोशनल फिल्म देख लूंगी, मुझे एक मिनट में रोना आ जाएगा. माय हस्बैंड विल लाफ ऑन मी. व्हाट आर यू? बट आई एम वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल. Yeah, so I have to change that about me. So emotional people are usually doubt their capability sometimes. I do doubt my capability. And there was a time where I used to think that am I really worth it? Am I not lucky enough? This also comes into your... Of course, it is a part and parcel of every human being. हम कोई स्टील या पत्थर से तो नहीं बने एक्टर्स. वी ऑल्सो हैव इमोशंस. वी ऑल्सो डाउट आवरसेल्व्स. आई ऑल्सो फील लोनली. आई फील दैट am I really made for it? Am I really worth it? But then what you have to do is now all these doubts, you have to just put it aside and you have to just live for yourself. The moment you remove all these negativities from your mind, you will start living. And that's what I'm doing. That's about it. It's a process, but trust me, it's a process. Easy नहीं है कि मैंने बोला बोलना तो कैमरे पे आसान है. Right. Easy नहीं है. मैं ये भी बोलूँगी, process is very difficult. Self-doubting is the worst thing. But you still self-doubt. There are times where I just want to lock myself in the room and not talk to anybody. I want my space. I am moody sometimes. I feel lonely sometimes. And then I keep thinking that where am I going wrong? I mean, I'm giving good performances. Then where am I going wrong? So ये questions तो बहुत natural, but obviously ऐसे सब आने वाला है. But then will you stop living your life? No. You just have to choose happiness over those negative thoughts. Sometime in this profession you get replaced also. Yeah. Many times. How you take that? I think अब तो मुझे आदत पड़ गई है. मुझे definitely बहुत आदत पड़ गई है that अरे you know what, we couldn't take you this time because we've taken some other actress. I'm not doing direct because I've heard few things. That's why I'm asking. Yeah. I have heard these a lot of times that
we couldn't take you because you couldn't fit in that role, so we've taken somebody else, so we've replaced you. I mean, last 2-3 months पहले की मैं बात बोल रही हूँ. मतलब I have heard this the maximum कि we don't see you in this role. तो कितना अजीब है ना, मतलब if you see a person like me who's an outsider, right, who watches on the screen कि अरे तो लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, अरे बढ़िया है, but there's other side of yours, है ना, which is behind the lens, Of which I course. can't see. Yeah, there's competition everywhere. You know, in every field there's competition, including my field. It's just that हमारा field ज़्यादा दिखता चर्चे है में। चर्चे में, बेसिकली हाँ। यही है. और ज़्यादा गलत है ना. हाँ, गलत है. मतलब हमें भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, हमें भी रिप्लेसमेंट फेस करने पड़ते हैं. बट क्या आप थोड़ा पिंच तो होता है, आप इंसान हो और मैं तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ, तो थोड़ा पिंच होता है. देन यू जस्ट टेक इट, यू नो, लाइक ठीक है, आई मीन मे बी आई एम नॉट meant for it, or maybe they have a better vision what to do. So you live life like this only, otherwise you will just get into that dark hole and won't be able to live. When was the worst time जो आपका breakdown बहुत जोरदार हुआ है? I think before school. Before school I was almost giving up. I'm like, you know what, this is not made for me. I don't know, I'm trying enough. God is also not watching. होता है ना कभी-कभी you want to blame God. But they have other plans for you. Yeah. And ये भी सुना है, they have other plans. उसके बाद भी कुछ plans नहीं आते ना सामने, तो मुझे लगता है बस ये सिर्फ कहानियाँ है. तो हाँ, to just बहलाओ yourself. So I was like, you know what, I'm not gonna expect only. I don't want to even like ask for it. I don't want to beg for it. I don't want to pray for it. Whatever has to happen will happen. So just let it go. Let it just go with the flow. So when you don't expect, no, that's when miracles appear. And that's what happened. I had gone for a holiday with Varun. I was just chilling. I'm like, chal, theek hai, this is the next phase of my life. Maybe this is what God wants. I'm like, theek hai, abhi nahi ho raha. I'm not going to like be thinking too much about my career. And that's when scoop happened. मतलब मैंने ऑडिशन दिया था और मैं भूल भी गई थी कि मुझे नहीं मिलने वाला ये. नेटफ्लिक्स है, लीड रोल है, टीवी से आई हूँ, हंसल मेहता है. It's not going to happen for me. And then it just happened. I also sometimes feel, how did it happen? I think sometimes. ये बैरियर होता है, मतलब टीवी से आए हो, ये भी एक चेकलिस्ट होती है. हाँ, of course होती है. बल्कि टीवी तो बहुत मेहनत का काम है. काश आपके जैसे लोग सोचते. अच्छा, मतलब जो मुझे लगता है ऐसा. हाँ, सी टीवी बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है आपसे. बट टीवी इज अ वेरी फास्ट पेस्ड मीडियम. आप कैरेक्टर्स के डिटेल में नहीं घुसते हो. आपको सिर्फ लाइंस बोलनी है, एक्टिंग करनी है, एंड यू बिकम लाइक अ सरफेस स्टार. लेवल है. या, एंड हाउस होल्ड नेम बन जाते हो आप, बिकॉज यू आर कमिंग ऑन टीवी एवरी डे. नाउ व्हाट इज OTT एंड फिल्म्स? बिकॉज यू कम एवरी डे ऑन टीवी, people don't relate to you as the new character. That's their logic. ट्राई नहीं किया तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो now the industry and the time and the mentality and everything's changed. Ab they are okay to take TV personalities or people who have come from theatre and do a film or probably a OTT. Vikrant Massey is the biggest example. एग्जाम्पल. यस. तो ये चेकलिस्ट जब, मतलब मैं तो फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज टीवी तो जैसे मैंने बोला सरफेस तो नहीं समझा, तो मुझे लगता है वो भी एक है. ऐसा क्यों नहीं है? डीपर अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें. I think जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ना, सब में हार्ड वर्क है. ऐसा हाँ, कुछ नहीं है मतलब हार्ड मैं तो वर्क. सरफेस तो नहीं मानता, बिकॉज एक रोल को आपने सालों साल करना उसी कैरेक्टर को, तो भी तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग ही है. हाँ, पर मैंने वैसा वाला कभी टीवी पे किया नहीं है जहाँ मैं सालों हाँ, साल राइट. मैंने किया ही नहीं है वैसा, क्योंकि मैं वैसे थॉट प्रोसेस से ही नहीं आती हूँ कि मुझे एक कैरेक्टर को 4 साल खींचना है या 2 साल खींचना है या 1 साल खींचना है. मुझे स्टार्ट और एंड पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ. सो दैट वे OTT हेल्प मी, बिकॉज आप एक कैरेक्टर को पकड़ के रखते हो और वो फट से खत्म भी हो जाता है. पर डिटेल में जाते हो आप. यू गो इन द डिटेल ऑफ द कैरेक्टर, दैट दिस गर्ल हु आई एम प्लेइंग हैज हर पास्ट, हैज हर फैमिली. So you get the chance to get into the psyche of the character, which I love about OTT. मुझे लगता है इंसान ना अपने हर साल में बदलता है. एवरी ईयर यू चेंज, है ना. आज कल आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आज आपको सही लगती हो, है ना. यू चेंज एवरी ईयर. व्हाट इज द चेंज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो आपको लगता है पास्ट में ये चीज़ें थी, अब मुझे लगता है ये सही है. जैसे सही मतलब होता है कि सोशल सर्कल में आप लोगों को किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, और लगता है कि टाइम के साथ आपको ना इतना मैच्योर तो हो जाना चाहिए. आई थिंक ना अभी मुझे
मैं थोड़ा सा कम रिएक्टिव बन गई हूँ. That's the Beautiful, very important. हाँ. Yeah, that's the change I've seen in my life, that I've become very less reactive. Initially, I used to react a lot. Initially used to get hurt a lot with people's comments. Now, with time, with practice, I've become little less reactive, which is helping me only in my mental peace. तो पहले मुझे लगता था ये गलत है, मैं सुनाऊंगी सामने वाले को that this is very wrong. I become like a lawyer, you know that this is right, this is But you wrong. used to do this thing. I used to do that और मैं अपनी enemies बनाती थी पहले. But now I think silence is the loudest answer. So I don't. Right, Mr. Pankaj Tripathi said कि उनसे भी कितने सवाल पूछा with time what you have learned. He said कि चुप रहना थोड़ी कला मुझे थोड़ी लेट समझ में आई है. हाँ मुझे भी. And after marriage now my husband has also said the same thing to me, that you don't have to be reacting in everything. Don't be so impulsive. Sometimes just be patient here. Hearing is also a biggest power. अब सुनो, अब रिएक्ट करना थोड़ा सा कम करो. तो ये सब मेरे को भी लेट ही सीखी हूँ मैं लाइफ में. काश थोड़ा सा जल्दी सीखा होता. And what other learnings which comes with age? See, I want to find your witty side. I know there's a witty side also in you. तो वो भी बाहर निकल रहा है हमारा. पर वो witty side ना, I only get it out when I have my friends. बिकॉज वो विटी साइड में ना मैंने कभी कभी ये किया है, मैं विटी हो जाती हूँ और कोई कभी कभी किसी को पिंच हो जाता. कभी कभी दे आर नॉट एबल टू टेक द जोक एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड व्हाट डिड आई डू, व्हाई डिड आई से. तो मुझे अंदर से ना ऐसा लगता है कि हाय मैं कितनी खराब, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा कितना ही खराब है. ऐसा मैं अपने आप को डाउट करने लगती हूँ, जबकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर और मैं बहुत विटी हूँ. बट विद माई पीपल वेर आई एम कंफर्टेबल दैट दे विल नॉट जज मी. The moment I'm judged, मैं अपने शेल में चली जाती. मुझे नहीं बोलना है किसी से. One thing I also think that with age you should clear your boundaries with people. Yeah, आपको एक you boundary, filter. हाँ, लोग कहते हैं अपनी अरे तो अब अकेले रहना पसंद करता है, but there is a boundary you have to. So now, right at this point now, you don't want any stressful people around you. You want to filter. You want to be chilling. You want to have like no nonsense group around you. Somebody said recently in the podcast that fame also comes with fear. Of course it does. Is it? Yeah. Fame comes with fear. क्या but जाने का डर लगता है उसके? कभी कभी ऐसा इसलिए इम्पल्सिव भी हो जाता है कि उसे फेम आ जाता है, उसके जाने का बड़ा डर रहता है. ऐसा है क्या? मेरे को ना इतना डर एक्चुअली नहीं लगा है. मुझे फेम चाहिए मेरे मीनिंगफुल रोल्स और काम से. आई डोंट वांट फेम जस्ट व्हाट आई एम पोस्टिंग on my social media. I don't want fame from there. I want fame where I've made a difference in everybody's life. Yeah. Like, arey, she's done this, you know, have you seen that role, what she's done? If I'm making a change in people's life, if I'm making a difference in people's life, that is fame for me. Or doing something for animals or doing something for the world. I want that kind of fame. And what do you do for animals? Oh my God. Of course, I'm not फुल टाइम वो कर भी नहीं सकते, कर नहीं सकती हूँ मैं. पर मैं जितना अपने टाइम से अपने हिसाब से मैं कर सकती हूँ. आई हेल्प ऑल द NGOs. आई एम ऑलमोस्ट इन टच विद ऑल द NGOs एंड आई कीप डूइंग माई क्लॉजेट क्लेंजिंग, जहाँ मैं अपने कपड़े जो प्री ओन कपड़े होते हैं मेरे वाले कपड़े क्लॉजेट से मैं लोगों को देती हूँ एंड दे सेल इट एंड व्हाटएवर मनी आई गेट आई डायरेक्टली गिव इट टू NGOs. I don't even keep it. So I do that. I create awareness. I am in touch with Menka ma'am and their entire team. Wherever I have to speak, whatever followers I have on my social media, if I'm making a difference and change and awareness in people's life, मैं अपना बिट करती हूँ. So in some point of time, you always look for the bigger purpose in life, है ना? Bigger purpose. Always and always bigger purpose. तो bigger purpose यही है आपका? यही purpose है. I swear I see myself. मुझे ना बोलते ना एक कॉलिंग कि आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का. बहुत सारे लोगों को, मैं तो अपने आप को बहुत क्वेश्चन करती हूँ. It's a bigger purpose always. What is that bigger purpose? What is that purpose of being in this life? What do you want to do? I think I've got my calling. After a few years, of course I will be always acting. Acting is my passion, is my love. But I think after a few years, I will have a place, like a land where I will keep all the rescue animals, be it any animal. All the rescue animals I will distress, जो भी तकलीफ में थे या जिसको ओनर ने फेंक दिया है, whatever,
I will keep all the rescue animals. Have you come across with such stories? Yeah, there are so many and I have so many friends who want to do it with me. मैं तो funds लेकर आऊंगी कहीं ना कहीं से. I know it. I will get funds, I will get donations from everywhere, but this is my calling. But ऐसे दोस्त तो नहीं नॉनवेज खाते हैं और बस नॉनवेज खुद अब खाते हैं. है, see, हाँ. like मेरा काम है that's- बोलना. Yeah, that's two sides of the coin, ना. I Yeah. totally agree on that. I totally agree. They eat meat, but they want to save animals. So it doesn't make sense. But what do you do? So I was watching one creative in the morning on the internet. There was this guy who was holding a dog and he's going to the meat shop to buy Yeah, I've chicken seen for that. it. I've Have you seen that? I've seen that. So अब मुझे तो लगता है मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए तो बेस्ट है टू हेल्प एनिमल्स. yeah, मतलब इट्स माय ड्यूटी टू टेल देम नॉट टू हैव मीट, नॉट टू ईट नॉन वेज. बट अभी वो लोग हम पलट के जवाब देते हैं, वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद दिस इज आवर स्टेबल फूड. व्हाट टू डू? हाउ डू यू argue? You can argue for a little time, but you can't the like. people used to say they'll give that our ancestors was used to hunt and these things, right? नहीं, ये तो नहीं जवाब कुछ मिला. लोग देते हैं ना ऐसे कि हाँ. हम तो आए उसी रेस से, बट आज तो हम जानवर नहीं है ना. अब बदलाव के लिए तो जी रहे हैं धरती नहीं, पे. अभी लोगों को पसंद है, हाँ, बस पसंद है. पसंद है. ये Right. सब ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओगे तो मर जाओगे. मर जाओगे. हाँ. आपके पास बहुत ऑप्शन है Options खाने है. के लिए. पर अभी ये आपका लाइफस्टाइल है, फैंसी लाइफस्टाइल है. You like eating non-veg, so or you can't do anything. I mean, I have tried my best to stop people around me, but if they don't want to, I mean, हाँ, I cannot say wrong because कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने भी बहुत नॉनवेज खाया है, तो मैं दूसरे को गलत नहीं बोलता. बट जब आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, देन यू फील दैट वो अंदर से आना चाहिए. मैं आपको रोकूंगी, अच्छा करिश्मा ने बोला स्टॉप करने को, तो वो लोग नहीं करेंगे. जब अंदर से आएगा कि यस दिस इज रॉन्ग एंड आई कैन सर्वाइव विदाउट ईटिंग मीट, वो जब अंदर से आएगा ना, दैट्स द विन. इट्स द सेम वे. लोग कहते हैं सरकार हमसे पैसा चुरा रही है, बट आप नीचे से किसी चुराते ऊपर दे देते हो. सेम वे या है ना. So when you meet such people who come and donate the money and in the house you see the same thing. So वो पैसा कैसे सही काम में आएगा ये बताओ आप मुझे. मतलब मैं तो बड़ा पिक्चर देख रही हूँ, दैट इज हेल्पिंग माय एनिमल्स. But then you are doing your karma. Yes, Yeah. that's Yeah, I'm at least taking it from people who can afford, and I'm helping NGOs and all that. They keep sending me that we need to raise funds for this accident, for this medicines and all that. And I keep asking. मैं भी करती हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, दो मुझे भी और मुझे NGOs को देना है. So I do it. I like that. अब अगर आपने बिगर पर्पस का सोचा है तो आपके अंदर जरूर स्पिरिचुअल साइड जरूर होगा. मैं एकदम स्पिरिचुअली हूँ. I'm not very religious. रिलीजियस तो वाह, वो तो ट्रेंडिंग टॉपिक है. हाँ, मतलब मुझे वो भीड़ भाड़ में टेम्पल जाना एंड ऑल दैट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई फील दैट यू हैव टू कनेक्ट विद द गॉड. योर गॉड इज हियर विथ यू. आई मीन आप अच्छे कर्मा करो, आप अच्छे लोगों से अच्छी तरह से बात करो. आई थिंक दैट्स इन अ वे यू मीटिंग गॉड. सो आई डोंट बिलीव. मैंने सेम सवाल किसी एक लॉट ऑफ दीज साधुज एंड कीप ऑन कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट नाइट. मैंने उनसे काफ़ी एक बड़ा डीप सवाल पूछा. मैंने तो ऐसा मुझे भी नहीं लगता कि ज़रूरत लगती है मंदिर जाने की या कहीं और पहाड़ों में जाने की. तो उन्होंने मुझसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया. उन्होंने मुझसे बोला कि आप शहर में किसी पेड़ को देखा है आपने? मैंने कहा देखा है. बोल कैसा लगता है? मैंने कहा धूल धूल होती है उसके ऊपर. बोल पहाड़ों में कभी देखा है उन्हें? बोला कैसा लगता है? बोले हरा भरा लगता है. तो दैट्स द डिफरेंस. समटाइम यू हैव टू गो समवेयर to feel that energy. Correct. It's not this necessary you should Basically, go. Yeah. temple is just about Yeah. cleaning your So energy. do you agree on this? Yeah, I do Yeah. agree. और मैं जाती भी हूँ, हाँ, ऐसा मैं भी नहीं. जाती हूँ. पर इतनी ऐसे होल्ड नहीं है. हाँ, हाँ. लाइक इतने ऐसे प्लानिंग नहीं है कि ये इधर जाना, ये इधर जाना. मतलब भगवान का जब बुलावा आ जाता है मैं चली जाती. चलो भगवान के बहुत नाम है. किसमें मानते हो आप? मतलब आई हैव लाइक 2-3 ऑफ माय फेवरेट्स. हनुमान जी इज माय फेवरेट. आई कॉल हिम हनु बेबी. हनु एंड गनु बेबी. सो या हनुमान जी. My god is Srinath ji. मतलब my mama strongly believes in Srinath ji and we go to Udaipur also to do darshan and all that. And I believe in Hanuman ji. I believe in गणपति भगवान. से स्पिरिचुअल भी आपके ऐसे इंट्रोड्यूस होता है कि कभी ना कभी लाइफ में ना कुछ ऐसा घटता है आपके साथ. जी. आपको लगता है सिचुएशन में कहीं बाहर नहीं आ पाता, बट फिर आपको लगता है नहीं यार कुछ है जब बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्गर होता है. ऐसा कुछ आपके साथ इंसिडेंस हुआ है? You talk about spiritually? हाँ. मैंने बहुत मतलब यू शेयर समथिंग. मतलब जैसे मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा है कि कोई ऐसा सिचुएशन थी जहाँ मैं बाहर कभी निकल नहीं सकता था, बट निकला उससे बहुत आसानी से. मतलब मेरा तो ऐसा था ना कि मुझे जब मैं नई मैनिफेस्टेशन और नई स्पिरिचुअल में मतलब आई स्टार्टेड बिलीविंग, अंडरस्टैंडिंग इट.
I always used to see a red logo, that I'm working in this red logo. All the time I was thinking that I have to work here. You've understood which I'm talking about. And that came to me. That was my first ever OTT lead role. That's Netflix. I started manifesting that I have to work here, and this red logo used to attract me a lot. And I just started visualizing it. One thing, that is one example. Second example is, I've done so many reality shows on TV. I've never won. अब मेरा history check करो, I've never won. मैं runner up तक आ गई हूँ, and the winner is not me but the other person. You know, मैं उतना पास तक आ गई हूँ, beat any dancing show, beat any reality show. That was my last reality show, which was खतरों के खिलाड़ी. I said, अगर मैं ये नहीं जीती ना, तो मतलब लानत है मेरे पे. इतने साल इंडस्ट्री में रह के मैं एक रियलिटी भी नहीं जीती हूँ, and I'm worth it. ऐसा नहीं कि I don't deserve it. I deserve it. I have the capability. I have the ability. I can do it. I started manifesting that I am winning. I'm already winning. Rohit Shetty is announcing my name. And I had this vision board in front of me all throughout the journey of खतरों के खिलाड़ी. And बहुत सारे ऊपर ups downs आए. मेरी neck injury हो गई थी. मेरे से कोई stronger player था. I'm like, अंदर से लगता था I'm not gonna win. But my belief and my manifestation was so strong that I started visualizing I am winning, and the host of the show is announcing my name. Against all odds. There were stronger people, mind you, I'm telling you. There were stronger people than me also. But I said, I have to win this. I don't care. वो जो बच्चों की जिद नहीं होती है, जब बच्चे को ना लेफ्ट राइट डिटेल्स कोई वो लोग सोचते नहीं है. They just want, I want this, I want this, I want this. I had become like that. I didn't see any odds. I'm like, I have to win this. That's it. And it came true. So that's when I think that when you really have a vision with a clear heart, you can achieve it. You know, but अपने लिमिट में ऐसे नहीं कि बंगलो चाहिए. बिल्कुल, वो भी किस तरीके वर्क करता है, एक तरीके से. It works within your power because you really want that, and it just helped me. So I'll ask you very very different question. See, with time क्या होता है ना, let's talk about winnings. चलो आप खतरों हुआ जो भी हुआ, winnings लाइफ में. फिर ब्लिंक ऑफ एन आया, आपको लगता है मैं इतनी बड़ी हो गई और कैसे लाइफ इतनी तेजी से चल रही है, और हम विनिंग की बात करें, बट लाइफ तो बिल्कुल है ना. कभी कभार लगता नहीं है कि कोई भी अचीवमेंट जिसके लिए आप इतनी दौड़ कर रहे हो, वो अचीवमेंट बड़ा छोटा लगने जाता है कि यार ये तो सब ठीक है, बट ब्लिंक ऑफ एन आए जिंदगी एकदम खत्म होने वाली है. हाँ, ऐसा. See, this is the reality. Then you understand the bigger purpose कि यार लाइफ में जिसके लिए इतना जोर लगा रहे, क्या वर्थ इट है कि. करेक्ट. आप आए हो अकेले. ये मैंने बहुत लेट समझा लाइफ में कि आप आए अकेले हो, आप जाओगे भी अकेले. Yes, your achievements till the time you are on this planet, you're living, you have to achieve. That is the purpose of life. आप ऐसे तो नहीं कि हाँ मैं आई हूँ इस जिंदगी में और मैं खाली चिल करके चली जाऊंगी. You want to have some purpose. You want to achieve a lot of things in life. When you have that achievement, you should know the power of gratitude also. Okay, you know, I've achieved this. Thank you. This is one thing which I always wanted to do, and I've got it. And that's about it. Move on in life, you know. Because मैं कभी materialistic things के बारे में सोचती हूँ. मैं कभी सोचती हूँ ये asset acquire करना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. ठीक है, एक ह्यूमन वांट है, एक ह्यूमन इमोशन है. आप ह्यूमन हो तो आपको वांट्स तो है ही है. करेक्ट. बट मेरे को ये भी समझ है कि जब मेरा जाने का समय आएगा, मुझे जाना अकेले है ये सब कुछ छोड़ के, तो इन अ वे तो ये सब पराया ही है. तो आप इतना लगाव मत रखो इस सब चीज़ों से. यस, you feel proud about achieving everything कि ये मेरा है, ये मेरा है. Everything is not permanent in your life. So I have that understanding parallelly running with me. So I'm not in some dream world कि ये सब मैं ही लेकर जाने वाली ऊपर और ये मेरा ही है, ऐसा नहीं है. So I am very sensible and aware about what is life. एक जब ना मैं बहुत यंग एक्टर्स से क्योंकि मिलते रहते काफ़ी जो लोग यहाँ पे आजकल स्ट्रगल करने आते हैं ना, when I ask them, they come with a dream, either they want to be big, शाहरुख खान जैसा बनना है, सलमान खान जैसा, होता ना, ऐसे होता ना सबके लिए. तो मेरा उनसे एक सवाल रहता है हमेशा कि फिर तू क्या है, फिर तो तू कॉपी एक तरीके से, अगर तू जो बनना चाहता है. और दुनिया तो किसी के लिए नहीं, रतन टाटा जी भी चले गए दुनिया से. मैंने कहा फिर किसे चेस करेगा. तो डू यू थिंक there's a different purpose जो लोग समझ नहीं पाते, अपनी आइडेंटिटी को समझना नहीं चाहते. पर मैं बोल रही हूँ ना, ये all of this comes with experience and age. उनको आप ये उम्र में समझा ही नहीं पाओगे क्योंकि वो लोग को लगेगा क्या बोल रहे हो आप. They don't have that kind of ability to understand ना.
all of this which I'm saying, I have got it with experience, with understanding life, with age. You understand कि आप ठीक है, you want to become like that. Maybe उनकी समझ उतनी है कि हमको उतना फेमस बनना है, उतना सक्सेसफुल And then बनना है. what? मतलब वो क्वेश्चन आता है उसके बाद उसके क्या? बाद क्या? फिर तो जब छोटा सा, अगर आपको छोटे फेम में अच्छा नहीं लगा तो बड़े फेम में अच्छा लगे, ऐसे कैसे पता चलेगा? So it's that, like, everybody wants to be famous, Right, everybody wants to be there's no successful. harm, right? It's absolutely no harm, but that gratitude has to be there. So I've seen your show also. There are a lot of people come on your show. It's a good guest I have seen. So कुछ ऐसा लर्निंग जो आपको स्टोरी किसने शेयर करी हो, आपको बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग, बिकॉज आप भी जब होस्ट बनते हो, सुनते हो दूसरों की बातें, तो आपको भी बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है. जैसे मतलब हंसल सर आपके शो पे आए, है ना, जैकी श्रॉफ आपके शो पे आए, मतलब legendary Jaggu people. Dada, I'm telling you, he's so good. He is so at Any advice you have heard on the show of yours? He's like, तेरे 2 पैर चल रहे, 2 हाथ चल रहे, सांसें हैं, फेस ठीक है, move on with your life. क्या लोग सोचते रहते, ये मेरा वो, मेरा बाल, मेरा फलाना. भगवान ने काम दिया है, उठाओ काम. You know, he's so real. He's so practical that you get to learn so much from that man. He and Hansel sir also, bro, what I learned from Hansel sir is like, he's also struggled. As a director, as an actor, as a producer, as an editor, he struggled in every compartment of life. But उन्होंने भी समझा है कि अब मैं कभी कभी उनको पूछती हूँ कि सर आपके बैक टू बैक इतने हिट शोज हुए हैं और आपको इतना फेम मिला है, हाउ डू यू हैंडल इट? बट योर एटीट्यूड हैज ऑलवेज बीन काम. I've asked him. So like, Karishma, because I've seen so much struggle in life, everything short-lived. So उतनी ही समझ है उनको, वो कैसे समझ आई? स्ट्रगल से आई. That's what I learned. कि भाई तुम स्ट्रगल नहीं करोगे, तुम्हारा फेलियर नहीं होगा लाइफ में. How will you enjoy the highs of life? So that way, struggle is very important in every actor's or an individual's life, I feel. Only then you can enjoy the power. But when a hustler is compared to a young gun who just came in the industry and वो थोड़ी अच्छी privileged family से आते हैं, तो वो जब comparison होता है तो वो comparison कैसा लगता है आपको? क्योंकि यार वो 2 रेस तो बराबर हो ही नहीं सकती. रिसेंटली मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा था कि अगर आप किसी को आगे और पीछे खड़ा करोगे और बोले एक ही बराबरी से भागे, ऐसा हो नहीं सकता. करेक्ट. सो ये लोगों को पता है ना. अच्छा, गॉट इट. वही मैं बोल रही हूँ, वो भले आने तो जो भी आ रहे हो, अगर मैं किसी के साथ कंपेयर हो रही हूँ, मुझे पता है ना कि कौन हसलर है और कौन इजी लाइफ से आया है. So that's it. I mean, people also know people are not dumb. So, I mean, it's a stupid comparison. Any rumor which is associated to you but which was not true and you never spoke about it? कभी ऐसा associate कर दिया और आपने बोला है चल क्या react करना है इस बारे में? I mean, in between there was a rumor that I'm pregnant. मतलब मैंने खाली ऐसे हाथ रखा था क्योंकि मैंने बहुत खाना खा लिया, तो मैंने ऐसे हाथ रखा था and Paps were there and Paps were like, oh, she's touching her stomach, she's pregnant. I had to laugh. I'm like, मतलब तुम्हारी सोच क्या? मतलब this moment is to celebrate. I'll tell you. Right. हाथ भी नहीं रख सकता एक इंसान अपने पेट पे when the cameras are on. I just kept it and I'd eaten a lot and Paps are like, hi, कैसे हो मैम? I said, मैं ठीक हूँ. And continuously, I didn't realize that my hand was up. Have media been any time unfair with the artist also, especially women, sometime? I would not say media. I would say the trollers have been very unfair to the female actors. We age, तो हमको बुढ़ी, हमको you're not in the industry, you should leave the industry. मतलब हम talking about general actors, female actors. पर जब male age करता है, तो oh, how stud, you are aging so gracefully. You know, similarly in the industry also, actors' success has always been cherished and celebrated. But a woman's success is questioned always. But however, the industry is changing. And I want to be the part of that change. But very slowly changing. Yeah, it's changing. And I want to be part of that change. I want to experience. I got your point. जैसे हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, मैंने देखा काफ़ी प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी एक्टर्स में काम ही नहीं मिलना बंद हो गया. क्यों कैपेबिलिटी खत्म हो गई क्या? वही तो है ना. बट ऐसा मर्दों के साथ तो नहीं हुआ. बच्चा तो दोनों ने पैदा किया. दोनों ने पैदा किया. But that's there. That is there. I mean, I hope it changes with time. It should change. क्योंकि what we go through hormonally, you know, in our bodies, it's very easy to say. कभी face तो कर लो, कब पता चलेगा. What is the one, if somebody comes to you, like
कोई नाइव सा बच्चा है आज की डेट में, बिकॉज मुझे तो लगता है आप, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से आपको काम करते देखा है, मुझे बाकियों का नहीं पता, कोई ऐसा हसलर सा बच्चा है आपकी तरह और ही इज़ वेरी यंग, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द पीपल हु जस्ट वांट टू कम बॉम्बे and want to make name in this line? I think now this industry has become very focused and very dedicated. So, मतलब पहले ना back then when I was working, it was easy to get a role first. अब अभी बहुत ना वो लोग बहुत particular हो गए हैं and competition बढ़ भी गया है. So you have to be so dedicated to your craft and your work that you have to stand out. If you don't stand out, you might not get a chance also. So I think persistence behavior, you have to be very persistent about your what you want in life, and you have to be very hardworking. एक focus, आपको literally अगर मेरी industry में आना है तो you have to leave everything around दुनियादारी and you have to be focused because there's a lot of competition now. और प्लान बी के साथ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? I mean, if your heart is stronger, if you're not very sensitive, then you can come. And why sensitive? Because हो जाता है यार, you know, people generally, in my industry, people generally are very diplomatic also. You know, Hard to understand. हाँ, and you have to face a lot of rejection also. So have that heart, have that mindset, and then come in the industry. और डबल फेस होने से होता क्या है? कुछ नहीं, आपको जिंदा रखेगा. I feel it'll help you live your life. Initially it's to disturb me and hurt me a lot. मुझे समझ ही नहीं आते थे लोग, क्योंकि मैं ठहरी साउथ बॉम्बे की रियल लड़की who knows the difference between a real life and a real life. When I am real, I am only real with my friends and with my family. But when I'm in real life, my acting life, then I forget this. So I know the switch on, switch off. I'm not both. Good. So I don't go cuckoo in my head कि ओ मैं तो एक्ट्रेस हूँ और मैं तो ये हूँ. मुझे पता है मेरा रियल साइड क्या है. बड़ा तो एक और साइड आ गया सोशल मीडिया. हाँ, अभी ये तीसरा स्ट्रेसफुल साइड आ गया है, which is also in a way it's growing. मतलब बड़ा एडिशनल प्रेशर आ गया ना आपके ऊपर. हाँ. पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ that I am myself in that. मतलब जो just because the trends are on and all that, I will not try to totally get into it. मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, पर थोड़ा थोड़ा I have to be true to myself also. I have to be real on social media also. And how to be real? Just whatever your personality is, whatever you are, you can focus on that and you can talk about यहाँ that. तो बहुत एडवाइस मिलती रहती है, लोग कहते हैं ऐसे बदल जा, ऐसा हो जा, ऐसा बढ़िया हो जाएगा. Not for, I mean, works for people. Yeah. They have, some people have more followers than me, who are more famous than me, who are getting more work than me, just because they are famous on social media. Somewhere we feel it's unfair, totally unfair, because आपने इतने सालों का body of work देखा नहीं है, and suddenly now that instant fame because of social media, they are more sellable than us actors, so it's unfair. Right. So there was this I'll not call him a creator. He used to be the RJ, है ना? RJ था बहुत long period of time, और he used to create content from that time. तो ऐसे ही मैंने उससे बोला आपका content creation कैसा है, तो he got offended. And so it's okay, and he explained me well कि प्रॉब्लम क्या है ना, कंटेंट क्रिएटर आने के बाद सबको लेबल कर दिया कि कंटेंट क्रिएटर है. उसने बोला कि कंटेंट क्रिएटर उन्हें पता भी नहीं, तब से हम काम कर रहे हैं, है ना. तो उसका कहना ये था कि आजकल ना जस्टिफिकेशन की वजह से सबको एक ही कैटेगरी डाल दिया है. समझा? तो क्या है कैटेगरीज पर? मतलब उनका ये कहना था कि कुछ लोग ना सच में अपनी लाइन में पहले से काम कर रहे हैं, जो कंटेंट आपका कुछ से कुछ जैसे आप हाँ अपनी एक लाइन ऑफ वर्क होगा जो कर रहे हैं कंटिन्यू, बट लोगों ने सबको उठा के कंटेंट क्रिएशन में डाल दिया आज की डेट में. हाँ, वी गॉट ऑफेंडेड यार, कंटेंट क्रिएटर तो मत बोलो मुझे आप, क्योंकि वो तो कुछ भी करते हैं आज की डेट में. क्या कुछ, क्योंकि यू सी हाउ यू गो ऑन एक्सप्लोर एंड रील्स एंड ऑल दैट, मतलब टू गेट फॉलोअर्स पीपल stoop to such horrible level, I would say, to just become famous. Bad, good, ugly, जो भी कमेंट से चलेगा, पर हमको फेमस होना है. But they're getting more views ना. Yeah, that's what ना. Imagine your life is dependent on your views now. Imagine, मतलब हमको लाइफ कितनी अफेक्ट करती है कि अगर आपने मेरी स्टोरी रिपोस्ट नहीं की तो मुझे अफेक्ट होता है. इतना पावर है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का. यू डिडंट रिपोस्ट माई स्टोरी, आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी, अरे मैंने आपके लिए इतना लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, यू डिडंट सी इट. Imagine we've given so much power to Instagram and social media, and I'm aware of it.
The worst part is you and me are aware of it. We still follow it. So- That is the power of social media. That is the power of becoming famous on social. Just imagine. पहले क्या जमाना था कि अरे तूने मेरा फोन नहीं उठाया, कॉल बैक तो कर ले. अब सब कुछ हैप्पी बर्थडे इधर नहीं होता, हैप्पी बर्थडे उधर होता है फोन पे. इमेजिन द डिफरेंस, इमेजिन द चेंज. और एक वो भी तो है कि उसने स्टोरी डाली तो मैं भी डालता वॉशरूम हूँ. में, बाथरूम में आप अपना फोन लेकर जाते नहीं थे? नहीं नहीं. मुझे तो याद नहीं है. हाँ, पर अब सब लेकर जाते बाथरूम नहीं में थी, फोन. बड़ी नहीं थी. वही तो. हाँ It's weird. हाँ. मतलब the thing is everybody knows about it. यहाँ everybody knows about it. कि ये गलत है, हम फिर भी फोन उठा के लेकर जाते हैं. देखो कैसे पकड़ के रखा है सोशल मीडिया ने हमको. एक प्रेशर ये भी तो है, जब लोग ना कभी पोस्ट कभी कुछ डालते हैं किसी के बारे में, जैसे एकदम से कोई किसी के लिए डालना है, पोस्ट डाला, मान लीजिए कोई बात ट्रेंड होने लग गई, तो ये प्रेशर रहता है, उसने पोस्ट डाला है तो मैं डालता हूँ. हाँ, मुझे तो ये प्रेशर बहुत होता है होता कि अरे हाँ मतलब वो शुड इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया ये मुझे भी डायरेक्टर करना को, ये चाहिए. प्रोड्यूसर को, ये हाँ. फिल्म को, ये हाँ, मैं नहीं फलाना करूँगा तो ढिमकाना. वो मुझे सोचेंगे हाँ. कि हाँ ये केयर नहीं करती. तो प्रेशर में करना पड़ता है. प्रेशर में वो लोग भी हमारे लिए करते हैं. तो एवरीबडी इज फीलिंग दिस प्रेशर. ऐसा नहीं कि हम एक्टर्स ही प्रेशर फील कर रहे हैं, वो लोग भी प्रेशर फील करते हैं. अरे मिस नहीं किया, अरे ये नहीं डाला, अरे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, अरे इसका शो आया है डाल दो, इसकी फिल्म आई है डाल दो. सब कुछ अभी सोशल मीडिया, एवरीथिंग. मतलब मैं ना कभी बातों में तो सोच में पड़ जाता हूँ कि ब्लिंक ऑफ एन आई में तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो रही है ना. आप इतने बड़े हो गए, आपको पता भी लगेगा, आप सोच के देखोगे, और फिर भी इतना महत्व इन चीज़ों को दिया जा रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस. एंड यू That's why whenever I travel now, I try traveling to is very important. yeah, I try to hug tree. I try to hug a tree. I walk नंगा पैर on the grass. मुझे वो सब पुरानी चीजें करने में अभी मुझे ज्यादा मजा आने लगा है. Like I want to be closer to the nature. I want to be away from the शोर शराबा, that social life. क्योंकि मैं अगर वो शोर शराबा और फैंसी लाइफ देखूंगी तो मुझे फोन उठा के इंस्टाग्राम करना होता है. मैं भी वही हूँ ना रट में. पर अगर मैं ग्रास पे चल रही हूँ, आई एम जस्ट वॉचिंग द सनराइज सनसेट, देन आई एम जस्ट एंजॉयिंग एंड आई एम मी. आई एम फीलिंग अलाइव दैट टाइम. So I want to feel that more. That's why I keep traveling if I'm not working. एक ऐसे सवाल मुझे किसी ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया तो बहुत यूज़ करता है, लास्ट टाइम सोशल मीडिया के अलावा सच में बैठ के सनराइज कब देखा था. एंड आई वाज लाइक स्क्रैचिंग माई हेड कि ऐसा सच में कब हुआ लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं. बस सोशल मीडिया रोज सनराइज देखता हूँ मैं. वही तो है, यही रियलिटी है हम सबका. बट वेयर इज गोना टेक अस? I think worse than this. More things will come, more social media platforms will come, and it will just, we'll be just, being tied up in all of this only. मैंने लोगों से काफ़ी एडवाइस सुना है हैप्पीनेस को लेकर. व्हाट इज योर टेक? मतलब हाउ वन शुड लुक हैप्पीनेस? I feel, I mean, this is my take. I just switch off from my social media. I try to be happy. I try to listen to music. Music really gives me positive vibes and energies. Be it any music. And to play with my Coco. Oh my God. I'm telling you ना, तो वो जो अंदर की जो वो release होता है ना, अनकंडीशनल लव होता है. yeah, it's just it's a different feeling, and I feel alive and happy with my son. I would never call him a dog. I mean, he's my son. Coco, I am playing with him. I am the happiest. I am watching a film with my family. I'm the happiest. I am with myself sometimes. I'm the happiest. I listen to music. I'm happy. So one should know where to cut the cord. आप करो ये सब. ये भी सब इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि कौन क्या कर रहा है देखना है आपको. करेक्ट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते. आपको देखना ही है कि कहाँ कौन. ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आई वुड ओनली ब्लेम सोशल मीडिया फॉर नेगेटिव थिंग्स. आई गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड थ्रू दिस. इट्स लाइक न्यूज चैनल फॉर मी ऑल्सो. सो आई टेक इट दैट वे ऑल्सो. मुझे बहुत ज्ञान भी मिलता है सोशल मीडिया से. सो आई विल नॉट ओनली से नेगेटिव थिंग्स. मैं जो देखती हूँ ना, मुझे वही, हमको ऐसा होता है ना कि आप जो देखते हो आपको वही मिलता है. तो या तो मैं हेल्दी खाना देखती रहती हूँ, या तो मैं मेडिटेशनल थिंग्स देखती रहती हूँ, या तो मैं व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड देखती रहती हूँ. लकीली मुझे वही सब एक्सप्लोर पे आता है. सो आई एम लर्निंग अ लॉट आल्सो विथ इट. मेडिटेशन काम करता है वैसे? हाँ, इट कम, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में तो आई एम वेरी ऐसे भटकेली आत्मा है. आई कांट जस्ट कीप स्टिल एंड बी फोकस्ड. थॉट्स भी बहुत आते हैं कि यार मेरे 5 मिनट वेस्ट करी, अरे 10 मिनट वेस्ट करी मैं मेडिटेशन में, प्लीज मेरे को यहाँ फ़ोन करना है, वहाँ फ़ोन करना है, ये सब सोचती थी. पर व्हेन यू गेट इनटू इट ना, धीरे धीरे, इट्स लाइक अ 1 week प्रोसेस. आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी इजी टू से कि क्या मेडिटेशन चलना. अभी इट्स नॉट दैट. व्हेन यू focus and it's a process for a week.
if you do that every day for 5 minutes, and when you start seeing peace, no, when you start feeling peace, आप 5 से 10 मिनट automatically करोगे. So I now do it for 20-25 minutes, you know, and थोड़ा patience lose होता है during the end, but it's a process again. It's a learning experience, and मुझे वो ठहराव, patience, calmness उससे प्राप्ति होती है. आप पता है लोग फास्ट बोलते हैं उनका ना वो बहुत सोचते रहते हैं. हाँ, मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मुझे पता है. बहुत सोचते हैं, मतलब वो इतना सोचते हैं कि अपने लूप में ही फंस जाते हैं. Correct है. और मुझे ये भी पता है कि मैं फास्ट बोलती हूँ, मैं स्लो बोलने की कोशिश भी करती हूँ. बट वो अच्छी बात नहीं है, बट मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ. आप लोग क्या होता है, बहुत सोचते बहुत है, और सोचते तो अपने लूप में एक से शुरू होते हैं, अपने उसी लूप में और फंस जाते हैं, और वो कभी कंक्लूजन पहुंच ही नहीं पाते. इमेजिन, तो अब मेरे लिए जैसे जो लोग हैं उसके लिए मेडिटेशन तो बेस्ट है. मैं इससे भी फास्ट बोलती थी पहले. अच्छा. मुझे सब कुछ फास्ट बोलने की आदत थी. नाउ मैं अभी थोड़ा सा सोचती हूँ, समझती हूँ. फिल्टर नहीं था पहले. हाँ, अब फिल्टर आया. पट बोलना, और लोग मुझे टोकते भी नहीं थे. बट वो तो अच्छे होते दिल के. हाँ, मैं पॉजिटिव हाँ, मतलब जो सोचती हूँ कि मैं बोलते ज्यादा, मतलब उनका दिल तो साफ ही होता है. करेक्ट नहीं, पर उसके उनके एनर्जी एनिमीज भी बहुत होते हैं. फिल्टरेशन नहीं होता ना, और हर बंदा ले नहीं सकता वो. करेक्ट. हाँ, इसीलिए मेरे एनिमीज ही बहुत बने हैं, बिकॉज ऑफ नो फिल्टरेशन, बिकॉज ऑफ नॉट थिंकिंग एंड टॉकिंग, बिकॉज ऑफ जस्ट टॉकिंग व्हाटएवर इज इन योर माइंड एंड यू जस्ट स्टार्टेड blabbering. कुछ ऐसी कोई बात लौट के आई होगी, आपको लगा यार मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, बट लोगों ने अपने आप दिल पे ले लिया. नहीं, मैंने बोला है. मैंने बोली है चीजें, और मुझे पछतावा हुआ है कि भाई साहब क्यों, कैन यू शट अप फॉर वन. एंड ऐसा नहीं कि किसी को दिल दुखाना था, जस्ट क्लियर हार्ट से बोल दिया. एंड वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपने इंटेंशनली कोई चीज़ नहीं बोली, आपका नेचर ही ऐसा है तो क्या करें, बट लोगों ने उस बात को गलत वे में लिया हो. मिस क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन. हाँ, इंटरप्रिटेशन हो. तो ऐसा हुआ है? हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं 10 बार ही हुआ है. उसके बावजूद भी मैं सीखती नहीं थी, अब जाकर सीखी. तो लोगों को ना काफी लोगों को ना, जब आप बहुत ज्यादा पहले होता है ना वोकल होते हैं काफी चीजों पर, तो उनकी जवाबदेही बहुत बन जाती है मार्केट में. मतलब आपने इतना कुछ बोल दिया होता है कि आप अच्छे के लिए बोलते हो, पर लोगों को समझ नहीं आता वो कहाँ जा रहा है. हाँ. तो आप जैसे रहे हो अकाउंटेबल किसी. नहीं, इतना नहीं. हाँ, इतना मतलब थोड़ा नहीं. हाँ, मतलब यूर आई एम टॉकिंग अबाउट माय नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स. ओके, safer space. हाँ, safer space also I've And said. how you behave in the industry, sir? Oh, I think and talk a lot. यार ऐसे क्यों है, मतलब मैं बहुत सोचता रहता ऐसा क्यों है. I don't know. I mean, I don't इंसान like. तो इंसान ही है ना, ऐसे ही रहेगा हर जगह. हाँ, but I don't know. Maybe वैसी vibes नहीं आती है, या तो ऐसा लगता है या you're लोग getting बहुत पर्सनल ले लेते हैं चीजों को. personal ले लेते हैं, and you get judged a lot. I feel so. I don't want to open up. When you say judged a lot means, I mean, sometimes you get that vibe, na, that oh, okay, they're judging you. You don't want to completely open up. It's not wrong. I mean, I'm friends with everybody, but I'm just me. I just like to keep quiet. so before ending this, before coming to the end, what is your open heart thing to say something on the camera कि यार I think this is the way you should live your life. अपना और इतना सख्त भी नहीं होना अपने साथ लाइफ में. मैं ना सबको बोलती हूँ that please don't be so harsh on yourself. And I'm saying this with my personal experience. I used to be very harsh on myself. I am still sometimes harsh on myself, you know, when I'm not working. As I told you in the interview also, that am I good enough? Am I worth it? And then I'm like, why am I so harsh on myself? Why am I so strict with myself? You have to let it go. You have to just breathe and live life. And I will tell this to all my viewers, that just enjoy life. I know it's not a very fancy life for everybody. I understand all of that. यहाँ सोफे पे बैठ के बोलना, ज्ञान देना बहुत easy होता है. But I'm saying it with experience, that I know there are hard times. I know everything is not very, very good for everybody. But if you just let it go and don't expect too much from your life also, no, sometimes it helps. So just go easy and just live. Because ये moment जो है ना, वो आएगा नहीं वापस. एक सेकंड पहले जो गुजर गया है वो वापस कभी नहीं आने वाला है जिंदगी में. तो जस्ट इफ यू हैव दैट little awareness of the time, the living in the moment, you'll start enjoying life. Last question. जब इंसान अकेले होता है लाइफ
अकेले बहुत समय तक काट रहा होता है, तो उसे लगता है अकेले रहना ही ठीक है, फिर उस शादी हो जाती है। ये तो शादी के अपने प्रो एंड कॉन्स है। व्हाट इज द बिगर फ्रूट, मतलब व्हाट इज द बिगर फ्रूट, मतलब इट्स ओके टू बी अलोन और इट्स ओके टू बी इन अ कंपेनियनशिप। See, I got married very late. तो मैं तो तभी आपसे वो सवाल, दोनों बैलेंस का सवाल पूछा हाँ, मैंने। तो मैं तो बहुत टाइम से अकेली ही थी. I got my space. I loved it also. I'm not saying that I didn't love it. I loved my alone time. I loved my space. There was a time that I stopped expecting कि मैं शादी करूंगी तो भी ठीक है, शादी नहीं करूंगी तो भी ठीक है, because आती I है was, स्टेज भी। हाँ वो आया था स्टेज के, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रही थी, मुझे ऐसे कोई कंपेनियन की जरूरत नहीं थी. बट हाँ, समवेयर डीप डाउन था कि यार एक अभी कंपेनियन आ जाएगा विद एज तो एक अच्छा रहेगा, दैट यू शेयरिंग योर लाइफ, योर सक्सेस, योर फेलियर विद दैट पर्सन. तो एक ऐसे थॉट कभी कभी आता है. एंड देन आई थॉट कि ओके, आई एम रेडी फॉर अ कंपेनियन, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड मैनिफेस्टिंग इट, एंड आई फाउंड वरुण इन माई लाइफ. So because I've stayed alone for so long, as I told you that I got married late, I'm enjoying this life also. And luckily with Varun na, we are not as husband and wife. We are not labeled like that. He also luckily doesn't like to be called a husband, and I don't like to be called a wife. वो लेबल नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग फ्रेंड्स हैं. जैसे फ्रेंडशिप में झगड़े होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो ही सब एक रिलेशनशिप में होना चाहिए. और मैं ये सबको एडवाइस देना चाहती हूँ दैट टू हैव अ डिसेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड हैप्पीली मैरिड आफ्टर एंड हैप्पी मैरिड लाइफ. वो जो है वो पता नहीं कौन से बबल में रहते हैं, वो टीवी पे होता होगा। हाँ. मैरिज इज नॉट अ जोक. इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इट. आप अपना बहुत ब्लड एंड स्वेट डालते हो to respect each other, to understand each other's emotions, to not hurt each other, to listen to each other. You know, all these things make a married life comfortable. So because I was alone for such a long time and now I have my husband with me and it's been 3 years now, I would say I've had a balance of both. You know, I liked that side also, I like this side also, and I'm enjoying it because we are buddies. If we have problems with each other, we talk. हम लोग ऐसे जमा कर करके एक साथ बर्स्ट नहीं होते हैं. जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, एंड जब भी उनको लगता है वो मुझे बोल देते हैं. एंड दैट्स हाउ यू डू इट विद योर फैमिली ना. आप मॉम डैड से झगड़ा करते हो तो आप बोल देते हो ना कि आप सब कुछ मन में रखो. ईगो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। एग्जैक्टली. और वो रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए. दैट्स अबाउट इट. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. एक फाइनेंशियल वाली बात हुई थी, मैं उसको, आपने बोला था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना मुझे पसंद है. तो जब आप अकेले जीना सीखते हैं ना, और आप बताते वेल टू डू फादर नहीं था, आपने खुद से सोचा है ना, तब कितनी जल्दी समझ में आता है कि गाड़ी नहीं होता है, घर लेना बहुत ज़रूरी होता है. लोग आज की डेट में क्या स्वैंकी कार्स एंड दीज थिंग्स दे वांट, बट रियल समझ तब आती है जब आदमी को पता हो घर है, या जो बिगर पिक्चर है वो जल्दी समझ में आ जाए कि फाइनेंशियली बस पैसा खर्च करना सब कुछ नहीं होता है. आज जूते ले लिए, आज ये ले लिया, गाड़ी ले ली, डिप्रिशिएटिंग एसेट की तरफ आदमी पैसा ज़्यादा लगाता है आज के, जस्ट टू इम्प्रेस अदर पीपल. ये आई फील टू ईच हिज ओन. वो भी मुझे लगता है विद एज एंड एक्सपीरियंस आता है. सब लोग ना जब स्टार्टिंग में यू वांट टू प्रूव इट टू अदर्स, यू वांट टू हैव दैट लाइफ व्हिच यू थक भी जाता है इंसान. हाँ, तो इनिशियली मतलब मैं तो थोड़ी गुजराती हूँ, तो मैंने थोड़ा बिजनेस ब्रेन वाइज सोचा. मेरे पापा ने मुझे बोला था कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो कर लिया था मैंने एंड ऑल दैट. एंड ऑफ कोर्स देन आई हैड, बिकॉज आई हैव नेवर हैड दैट काइंड ऑफ लग्जरी life in my past, you know, when I was young, I wanted to have all the luxuries in my life and all that. तो वो भी enjoy किया, साथ में assets भी लेना शुरू कर दिया था मैंने. So yeah, I mean with age, with experience. क्योंकि साथ के लोग ऐसे होंगे ना जो आज पे पैसा खर्च करे, गाड़ी लेनी है, बताते अरे मैं तो वो लग्जरी कार में. उनकी जर्नी है. I feel, you know, they'll also learn. Everybody is smart enough to learn with their own age and time. Beautiful. Thank you so much. Thank you for being on Impact Story. Thank you so much. Thank you. I hope it made an impact. Yeah.